गाइस, दिस इज भावना मारला फ्रॉम वेल टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट जोडियाक साइन विच इज कैप्रिकॉन फॉर दिस वीडियो। And if you are a Capricorn, then this is the video for you. And we will be seeing that how this month of September, or how this coming week, that is the last week of September for the Capricorns. So let us check for them. But before starting this video, I will say I will introduce myself to all the new viewers जो भी इस वीडियो को अभी न्यूली वॉच कर रहे हैं, that I am Bhavna Batla, a tarot card reader, a life coach, a numerologist and a Vastu specialist. And if you need any personal consultancies regarding to any of the subjects like health issues, like your finances, like your marriage, like your conceiving or anything, you can definitely get your prediction done by us and by contacting us. All the details are given in the description box of this video, so do watch that. Okay guys, so let us start with the Capricorn. Okay Capricorns, hi. And we'll be checking how this month of September is going to be for you. So I'll be picking the card first for all the weeks of the September for you Capricorns. Okay. Okay, so the very first is like the card of a tower. Okay, which is not very good. So I don't find कि आपका first week जो है वो ज़्यादा positive जा सकता है. It could be like you can majorly affected with any kind of financial losses, or either your relationship loss, or either it could be related to your health loss. So if in the first week of September, it's majorly recommended कि आप लोग अपना ध्यान रखें, स्पेशली डू नॉट ट्रस्ट विद द अदर पर्सन्स जो भी आप लोगों की लाइफ में है. तो दूसरे किसी पर भी भरोसा ना करें, एंड डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स सो दैट यू कुड सेव फ्रॉम दिस मेजर लॉस. Okay, and the second card, but the second week, just now first week is negative, as this month of September has started with the negative vibes, but the second week of the September is going to be very good for you, because the second is a Fool. After the card of a tower, and getting the card of a Fool is like a very good one, because यहाँ पर if something has ended, if the something has majorly affected, like if your health is majorly affected, or if your finances are, or if your relationship are majorly affected in the first week, the same way the second week is telling you about a new beginning, a new life into yourself. So कहीं ना कहीं जो कैप्रिकॉन्स हैं उनके लिए सेकेंड वीक बहुत ही पॉजिटिव रह सकता है. ठीक है, एक नई शुरुआत. इफ़ यू आर जॉबलेस एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, देन दिस सेकेंड वीक इज़ फॉर यू. इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू नीड सम प्रॉफिट्स, और यू आर नॉट गेटिंग anything, मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो this second week is something like very good for you, especially for your profits. So this second week is majorly very good for you. But as in moving to the third week, we have got enhancement. So अगर कुछ भी planning आप कर रहे हैं to accomplish in your life, तो third week में थोड़ा उसके लिए majorly ध्यान रखें. ठीक है, क्योंकि कुछ भी planning इधर work नहीं करेगी. ठीक है, it will always like same balance चीज़ें रहने के chances हैं, especially in this third week, क्योंकि इस time पर अगर इफ़ यू आर फाइंडिंग अ जॉब, और अगर टिल द सेकेंड वीक भी अगर आपको जॉब नहीं मिली है, तो थर्ड वीक में भी उसे एक्सपेक्ट मत करें, क्योंकि सेकेंड वीक में भी क्योंकि दिस थर्ड वीक में भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं है. चीज़ें जो हैं अभी अपनी प्लानिंग्स पर फोकस करने का टाइम है. ठीक है, वट एवर यू आर डूइंग, स्पेशली इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन, तो इट विल बी बेटर कि अगर आप इस टाइम पर घर पे ही रिलैक्स करें. कुछ भी प्लानिंग वर्कआउट इस टाइम पर करेंगे ना, तो वो वर्क नहीं करेगी, चाहे वो जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, किसी भी चीज़ से इशू से रिलेटेड है. बट अगर वहीं पर अगर हम फोर्थ वीक में अगेन मूव करते हैं, तो वो ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, इट वुड बी लाइक मिला जुला सब पूरा मंथ रहेगा सितंबर का आपका, स्पेशली दिस फोर्थ वीक. दिस फोर्थ वीक इज अगेन टेलिंग यू कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकते हैं. आइदर इज रिलेटेड टू योर जॉब, आइदर इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, फाइनेंसेस, वेल्थ. तो बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं. दीज अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फ्रॉम फार अवे. बहुत दूर दूर से भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने के बहुत चांसेस है. आइदर इफ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, और समथिंग लाइक किसी भी कॉल का वेट है, कि जिनके वीजा PR नहीं लग रहे हैं, स्पेशली दिस इज द वीक फॉर यू. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वीक भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए. सो आई रियली होप दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू.
Okay, so now it's the time for the questions. So firstly, I'm going to pick the cards for all the Capricorns who are searching for a job. So let us check, will this month bring a job for you, or with this last, especially this last week of September, which has been started yet. So will this going to be bring a job for you? ओके वेल देर इज़ नॉट मच चांसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जॉब के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन अभी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, ठीक है, स्पेशली लाइक द हैंगमैन. सो आई विल से कि नो, देर इज़ नॉट मच चांसेस कि आपकी जॉब इस मंथ लग जाए. Okay, if you are a Capricorn and doing a business, so okay, let us check that how much profit just this month is going to bring for you. Okay, yes, this is highly positive card. Okay, so both of the cards are like 2 and 3 of wands, which are actually saying कि जो भी आपने प्लानिंग अभी तक अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, या जो भी अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल करने के लिए, आपने कुछ भी ग्रोथ पाने के लिए जिस भी तरीके की प्लानिंग करी है, येस, that planning will make sense and that planning will bring you profits as well. So this is going to be very good month, especially the second and the fourth week is very good for you. इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड वेटिंग फॉर ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स के, अगर किसी भी रिजल्ट्स के आपको चांसेस हैं, कहीं से भी दूर से, स्पेशली फ्रॉम द अब्रॉड्स और इंटरनेशनल कंट्रीज से अगर आपको किसी भी तरीके की कॉल के चांसेस हैं, तो वो आने के फुल्ली चांसेस हैं इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, स्पेशली द सेकेंड एंड द फोर्थ वीक ऑफ द सेप्टेम्बर. Okay, now let us check for the peoples who are like having some kind of a health issues. तो थर्ड क्वेश्चन हम हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड लेते हैं. Okay, so let us check now. The very third question is for the health issues. So how's your health issues going to be if you are Capricorn and is having some kind of health issues? Then let us check how this month of September is going to be for you. Okay. ओके, सो इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल. सो आई विल से कि ओके, इश्यूज थोड़े लगे रहेंगे आपको, ठीक है, ये मंथ भी कहीं ना कहीं थोड़े हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंसेस ज़्यादा स्पेंड होने के चांसेस नहीं है, किसी भी तरीके के खर्चों की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक आपको डॉक्टर तक नहीं जाना पड़ेगा. इट वुड बी वेरी माइनर चीज़ें, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगी. सो इफ़ यू आर हैविंग एन हेल्थ इश्यूज, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है. नाउ लेट अस चेक फॉर द पीपल्स हु आर अनमैरिड राइट नाउ. तो अब उनके लिए कार्ड पिक करते हैं, दैट विल दे गेट देयर पार्टनर दिस मंथ, और इफ you are unmarried, so what are the chances of your marriage in this month of September? Is your marriage going to be fixed or not? So let us check through the cards. Okay, सो येस, देर इज़ अ पॉजिटिव चांसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ों की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, थोड़ी हार्डशिप ज़रूर नज़र आ रही है, ठीक है, बट स्टिल व्हाट आई वुड से कि अपने मॉम डैड के साथ बिल्कुल अपने मॉम डैड की ब्लेसिंग्स रखिए कैप्रिकॉन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत वर्क करने वाली है आपके लिए, ठीक है. तो येस, देर इज़ अ चांस कि अगर आप सर्च कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को, तो बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं कि वहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले, ठीक है. इफ़ यू आर अ कैप्रिकॉन, देन आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इफ़ यू आर अ मैरिड, देन हाउ इज योर मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी फॉर दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एंड स्पेशली दिस द लास्ट वीक ऑफ द सेप्टेम्बर. ओके, सो यहाँ पर थोड़ी हार्डशिप इस टाइम पर ज़रूर नज़र आ रही है, मे बी कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ईगो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. स्टेबिलिटी ज़रूर है, मेजर इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन हाँ कुछ बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है. तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बर्डन फील ज़रूर होगा, क्योंकि सारे के सारे इस टाइम पर वैसे भी वैसे तो अब लॉकडाउन पीरियड ओवर हो चुका है इस टाइम पर, लेकिन फिर भी सिंस इफ़ यू आर ऑल्सो सिटिंग होम, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड बहुत ज़्यादा रिजोनेट कर रहा है उस चीज़ से कि कहीं ना कहीं थोड़ा बर्डन फील ज़रूर होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ठीक है, सारे वर्क्स का, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर सकती है. तो दिस इज़ ऑल फॉर द कैप्रिकॉन्स. आई रियली होप दैट आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन. सो इफ़ यू स्टिल हैविंग एनी मोर क्वेश्चन, डू लेट मी नो, सो दैट मैं अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में आपको साथ और भी कुछ शेयर कर सकूँ, स्पेशली कैप्रिकॉन्स के लिए. आई बीन थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम वीडियोज़ रिलेटेड टू द ज़ोडिएक साइन, व्हाट आर द पर्सनैलिटी of the zodiac signs, right? For that I'm deciding to make some videos, so I really hope you will enjoy that.